Hi students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are fine at your home. Welcome to the general science subject once again. Today we are going to complete the remaining part of our unit water. I hope that you all have to done the home assignment of the previous part and well clear the concept. In the previous week, we already covered introduction, importance of water, types of water, sources of water, and process of storage of water. Let's take a quick preview of our prior work. Number 1. Water is essential for plants, animals, and humans. Next, all living things cannot exist without water. Types of water: sweet and salty. In some places, we have ponds, lakes, and large streams called rivers. Rivers flow down to the seas and oceans. The flowing rain water passes over different kinds of soil. It carries the salt from the soil to the sea. This is why the sea water is salty. Rainwater also enters the underground. In some places, it can be brought to the surface by using natural springs. Water from rivers, lakes, and ponds is cleaned and stored in tanks and water plants. This stored water is sent to homes through pipes. We also build reservoirs to store water. We store water through, we dig wells to store and get underground water. Underground water can be brought to surface with a hand pump. We build canals to take water from one place to another. We block flowing rivers with dams. Water can be collected and stored behind the dams. Today, in Water Part 2, we are going to discuss water cycle, ways by which we can save water, water gets polluted through. Let's start with the topic, the water cycle. Students, what is water cycle? It is continuous journey water takes from the sea to the sky to the land and back to the sea. Confused? Oh my God, teacher, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया. ये हुआ क्या वाटर साइकिल में? For that, I would like to request you to must watch this video which shows graphically that how do water cycle process. So students, first you have to watch this video very carefully, okay? I hope students now you get the answer that what is water cycle and how do it process. Okay, so what first process comes to your mind? Come on class, any guesses? Oh yes, brilliant. It's groundwater. Let's read the point first. Some of the water that falls on the earth seeps into the ground. This water is available to us in the form of groundwater, and some water falls back into ocean, rivers and lakes. Students, as I explained you in a previous presentation that we get water from different sources like sea, lakes और rivers. वाटर साइकिल क्या है? वो एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें जो अंडर वाटर जो अंडर सरफेस वाटर होता है वो भी जो है वो बाहर आता है. ठीक है, डिफरेंट तरीके से आपको लास्ट प्रेजेंटेशन में सब बताया था कि किस तरह से वो बाहर आते हैं. ठीक है, और फिर वही समंदर का पानी या सी का पानी या लेक्स का पानी जो है वो हवा में जाता है वेपराइज होके. ठीक है, और फिर अगेन वो जो है वो सी में आता है. कैसे आता है? एज यू ऑल नो, कम ऑन गिव मी द आंसर क्विकली. कैसे आता है? रेन के थ्रू आता है. वेरी वेल. Then the next step is evaporation. Let's read the point first. The sun heats up the water from ocean, lakes and rivers and changes into water vapor by the process of evaporation. It's actually the process of changing from a liquid into a water vapor through steam.
दिस इज़ अ वाटर ड्रॉपलेट्स गोइंग अप टू द स्काई। होता ये है जब सन बहुत ज़्यादा हीट अप करता है, ठीक है, तो समंदर का, लेक का या रिवर का पानी जो है वो वेपराइज होके आसमान की तरफ जाता है, स्टीम बनकर आसमान की तरफ जाता है। मम्मा को घर पर देखा है कभी, स्टोव पर जब पानी बॉईल कर रही होती है, चूल्हे पर पानी बॉईल कर रही होती है अम्मा, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें बबल्स बन रहे होते हैं, बबल्स बनते हैं और भाप निकलता है, स्टीम निकलता है, और स्टीम आसमान की तरफ जा रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है। सेम इज़ लाइक दैट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एवोपरेशन का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें पानी जो है वो स्टीम बनकर स्काई की तरफ जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस इज कंडेंसेशन। व्हाट हैपन इन दिस प्रोसेस? Let's read the point first to more clear the concept. Condensation. These water vapor rises up into air and make a rainy clouds. It start cooling down and form tiny water droplets. This process is called condensation. Students, आपको मैंने एवोपराइजेशन में बताया कि जब सन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हीट अप हुआ होता है, तो पानी जो है वो स्टीम बन के एवोपराइज हो रहा होता है, ठीक है, वाटर वेपर बनता है। उस वक्त पानी जो है वो गर्म होता है, ठीक है। आपको मम्मा स्टीम करवाती है जब आपको नज़ला ज़ुकाम होता है ना, तो जब आप स्टीम करते हैं तो क्या होता है, आपका चेहरा गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? उसकी वजह ये है कि जो स्टीम होता है, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके फेस पर जब लगते हैं, आपके चेहरे पे लगते हैं, तो वो चूँकि गर्म होते हैं इसलिए आपका चेहरा गर्म हो जाता है उन ड्रॉपलेट्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। जब एवोपराइजेशन होता है तो एवोपराइजेशन में आपके जो वाटर वेपर्स होते हैं वो गर्म होते हैं, लेकिन जब वो स्काई पे जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं और रेनी क्लाउड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे उसमें ड्रॉपलेट्स जमा होते जाएंगे, इट बिकम हेवियर एंड हेवियर, वो ज़्यादा हैवी होता जाएगा। इस प्रोसेस को जो है वो हम कंडेंसेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन precipitation process, when the clouds gets heavy, they fall to the earth in the form of rain or snow. This process is called precipitation. We also called rainfall. As I said that when water droplets is cooled down, it get heavy and fall to the earth in the form of rain or snow. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब स्टीम वाटर या वाटर वेपर आसमान की तरफ जाते हैं तो वो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो कूल डाउन होते हैं तो हैवी होते हैं, जितने ज़्यादा ड्रॉपलेट्स जमा होते जाएंगे क्लाउड्स के अंदर, इतने ज़्यादा वो हैवी होते जाएंगे और फिर वो रेन की सूरत में या स्नो की सूरत में फॉल डाउन करेंगे ऑन आवर अर्थ, ठीक है। सो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, वाटर साइकिल। इट्स नॉट दैट कि एक साइड से स्टार्ट हुआ एंड देन इट्स एंड टू द अदर साइड। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। जब रेनफॉल होगा तो क्या होगा, अगेन वो कहाँ जाएगा, सी, ओशन, रिवर, लेक, स्ट्रीम में आपके पानी जाएगा। सो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस एंड इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस, इट कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा होगा, ठीक है, ये चल रहा होता है। नाउ लुक एट द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वाटर साइकिल? ग्राउंड वाटर, evaporization, condensation and the rainfall. Okay students? Now look at the picture, you better understand the process of water cycle. Groundwater, which includes sea, ocean, stream or lake. Because of the sun heat, the water vaporize in the form of steam. Then it go to the sky, water cool down and make a rainy cloud. And when rain cloud get heavy, the water fall in the form of rain and come to the ground. This cycle is processed again and again. Why? Because the movement of water around our planet is important to life as it support plants and animals. Okay students, आपने ये प्रोसेस पूरा सुना कि सबसे पहले ग्राउंड वाटर है आपके पास, क्या है उसमें, सी, ओशन, स्ट्रीम और लेक। फिर सन की हीट की वजह से
जब वो स्टीम बनता है और वेपराइज होके ऊपर जाता है, जिसको हम एवोपरेशन का प्रोसेस कहते हैं। फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है जिसमें वो कूल डाउन करता है और रेनी क्लाउड्स बनाता है। और जब रेनी क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो रेन की सूरत में या स्नो की सूरत में हमारे पास हमारे ग्राउंड पर आते हैं। और जब हमारे ग्राउंड पर आते हैं तो वो दोबारा से जो है वो ओशन, सी और लेक में जाते हैं। फिर दोबारा से सन हीट अप करता है, फिर दोबारा से एक वेपराइज का जो है वो प्रोसेस शुरू होता है, फिर कंडेंसेशन होता है और फिर दोबारा से जो है वो रेनफॉल होता है या प्रेसिपिटेशन होता है। तो इट्स अ कंप्लीट वाटर साइकिल प्रोसेस। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे प्लानट के लिए, हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट करता है हमारे प्लांट्स को और हमारे एनिमल्स को। किस तरह? जब रेन होती है तो उससे हमारे जो फील्ड्स है, हमारे जो जैसे हमने वाटर के चैप्टर में लास्ट टाइम भी प्रेजेंटेशन में देखा था कि हमारे कैनाल्स वगैरह में जब पानी होता है, पानी वहाँ पे जमा होता है तो वो फील्ड्स में काम आता है, खेती बाड़ी के लिए काम आता है। एनिमल्स वो पानी पीते हैं, आपकी जो फिशेस वगैरह है उनको पानी मिलता है, आपके जितने एनिमल्स हैं उनको पानी की ज़रूरत है, हमें जो है वो स्वीट वाटर की ज़रूरत है जो हमें रेन के थ्रू मिलता है। तो ये हमारे लिए, ऑल लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, द वाटर साइकिल। Okay students, this is the diagram of the water cycle. Number 1 is groundwater, which is on the surface. Number 2 is evaporation because of the sun heat. Number 3 is condensation. The water vapor is cooling down and make a droplets and rainy clouds. And the last one is precipitation or the rainfall. Okay students? Okay students, always remember water is a natural resource on earth. हमारे पास जो पानी है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, हमारी ज़मीन का खुदा की तरफ से हमें कुदरती गिफ्ट है। सो वी हैव टू सेव द वाटर। ठीक है, नॉट फॉर आवर सेल्फ बट फॉर एवरी लिविंग थिंग, फॉर ईच एंड एवरी लिविंग थिंग। ओके, जिसको नीड है, जिसको ज़रूरत है, हर उस लिविंग थिंग के लिए हमें चाहिए कि हम वाटर को सेव करें। हाउ टू सेव द वाटर? लेट्स फाइंड आउट। वाटर इज़ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स. We must try to keep our water supplies clean and must not waste water. Here are the simple things you can do at home to save water. क्लास ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाके काम करें। आप अपने घर पर रहते हुए छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, उसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना सकते हैं, अपनी हैबिट्स बना सकते हैं और उस हैबिट के थ्रू आप लोग जो है वो वाटर सेव कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, नंबर 1 पॉइंट इज स्टॉप रनिंग द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग योर हैंड्स। हम नहाने जाते हैं, हैंड वॉश कर रहे होते हैं, हाथ धो रहे होते हैं, या हम जब ब्रश कर रहे होते हैं तो वाइल ब्रशिंग द टीथ, जब हम ब्रशिंग कर रहे होते हैं हमारा टैप कंटिन्यूसली ऑन होता है। ठीक है, हम पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन वो पानी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जब आप ब्रश कर रहे हो मेक श्योर कि आपका टैप क्लोज्ड हो। जब आप ब्रश कर चुके हो उसके बाद जब आपको वॉशिंग करना हो, आपका माउथ आपको गगल करना हो, तब आप गगल्स के लिए जो है वो आप टैप ऑन करें। ठीक है, ओके। टेक शॉर्टर शावर। अच्छा, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी स्टूडेंट्स, हम अक्सर जो है वो बाथरूम में जाने के लिए तो चले जाते हैं लेकिन हमारा निकलने का कोई टाइम नहीं होता है। अंदर जाके जो है वो हम गाने गा रहे होते हैं, हम जो है वो रेसलिंग कर रहे होते हैं। स्पेशली बॉयज़, आई नो द बॉयज़ जो है वो यूजुअली रेसलिंग कर रहे होते हैं, अंदर पानी उड़ा रहे होते हैं, मुस्लिम शावर लेके पूरे बाथरूम को ऐसे उड़ाते हैं जैसे कोई पता नहीं कहाँ पर जो है वो आप बैठे हुए हैं, शायद कोई वाटर पार्क में। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। टेक शॉर्टर शावर। ठीक है, लेस कंज्यूम करें अपने टाइम को, जल्दी फ़ौरन नहा के बाहर निकल आए ताकि पानी कम से कम यूज़ हो और वो पानी फिर किसी और के यूज़ में आए, किसी और को काम आए। ओके ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्स द ड्रिपिंग टैप्स टू अनफ्लो द वाटर। ठीक है, गेट प्लम्बर टू फिक्स द टैप्स। समटाइम्स ये होता है कि हमारे टैप्स जो है वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो रहे होते, तो पानी जो है वो ड्रिपिंग करता रहता है कंटिन्यूसली और उससे जो है वो पानी वेस्ट हो रहा होता है। सो बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड फिक्स आवर टैप्स। ठीक है, ताकि वो पानी जो है वो सेव हो और दूसरों के काम आए।
The next point is reuse the water that is used for washing fruits and vegetables to water the plants in your home. जब आप लोग जो है वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेके आते हैं और उसे आप अच्छे से वॉश करते हैं तो उसके पानी को आप ज़ाया ना करें, बल्कि अगर आपके घर के आसपास ट्रीज़ लगे हुए हैं या प्लांट्स है या कोई छोटा सा गार्डन है, कोई बहुत सारे लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं तो वहाँ गार्डनिंग होती है, वहाँ गार्डन्स होते हैं, ठीक है। तो वो पानी जो है वो बजाय इसके कि आप उसे ज़ाया कर दें, आप वहाँ यूज़ करें, क्योंकि ये पानी उनके लिए जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है, ठीक है। और उससे प्लांट्स की ग्रोइंग भी हो जाती है, उनको वाटर भी मिल जाता है और हम इस तरह से वाटर का रीयूज़ भी कर लेते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स फाइंड आउट हाउ डज द वाटर गेट पोल्यूटेड थ्रू. So look at the point first. Do not chemical water flow back into rivers or lakes. Students, what happened here? Factories dump their harmful chemical waste into fresh water like rivers, lakes or streams. This contaminated water can affect to fish and plants and us as well, and it can cause many health issues. होता ये कि स्टूडेंट्स जो फैक्ट्री ओनर्स है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपने केमिकल्स वेस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो आप फ्रेश वाटर के अंदर उसे डंप कर देते हैं. रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया या स्ट्रीम हो गया, ठीक है. अब ये गंदा पानी जो है वो सबके लिए नुकसानदेह है. वही गंदा पानी हम भी पी रहे होते हैं, वही गंदा पानी आपकी फिशेस भी ले रही होती है, वो भी पी रही होती है, ठीक है. और वही गंदा पानी जो है वो आगे प्लांट्स के लिए जा रहा होता है फॉर द इरिगेशन पर्पस. तो जब यही सारी चीज़ें, यही पानी, केमिकल वाला पानी इन सबको मिलता है तो वो अल्टीमेटली हमें नुकसानदेह इसलिए ज़्यादा पहुंचाएगा क्योंकि हम पानी भी यूज़ कर रहे हैं, हम फिश भी खा रहे हैं और हमारा प्लांट्स का भी इंटेक है. तो वो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के लिए जो है वो नुकसानदेह है. तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो फैक्ट्री ओनर्स है उनको चाहिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करें और ना करें ऐसा काम जो ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि उनके खुद के लिए भी नुकसानदेह हो, क्योंकि ये चीज़ें वो खुद भी जो है वो इनटेक करते हैं, ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट गार्बेज डंप इनटू वाटर. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड bins at seaside like sea animals so that the people understand their responsibility and put the garbage. But हम क्या करते हैं? क्या हम गार्बेज डालते हैं उस फिश वाले बिन्स के अंदर? आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. लेट मी शो यू. हम टाइटेनिक की तरह खड़े हुए हैं और हम सेल्फीज़ ले रहे हैं, ठीक है. सी साइड पे जो ये बिन्स लगी हुई हैं उस पे, उसका काम ये नहीं है कि हम उस पर खड़े होकर जो है वो टाइटेनिक वाली सेल्फीज़ लें, बल्कि उसका काम ये है कि हम अपने सी साइड के एरिया को जो है वो नीट एंड क्लीन रखें ताकि हमारा वो जो सी साइड है वो बहुत खूबसूरत लगे, ठीक है. हमारा जो वाटर हो वो फ्रेश रहे, जस्ट लाइक अ स्काई ब्लू वाटर, और जो कितना ब्यूटीफुल लगता है ना. और प्लस ये कि हमारी इससे क्या होगा, हमारी टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी, लोग दूसरी कंट्रीज से आएंगे, दूसरे एरिया से आएंगे और आके कहेंगे वाओ कराची वाले तो भाई बड़े नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा जो है वो अपनी जगह को साफ़ सुथरा रखते हैं. तो ये कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम खा के कचरा वहाँ ना फेंकें बल्कि डंप करें, ठीक है. चाहे वो कॉर्न हो, मकई हो, भुट्टा खाते हैं ना हम सी साइड पर, और उसके बाद हम भुट्टे का कचरा यूँ करके उड़ा रहे होते हैं, ठीक है, जैसे हम जो है वो उससे थ्रो बॉल खेल रहे हो. तो प्लीज़ उसको डंप किया करें, ठीक है. उसको वहाँ रास्ते में या वहाँ मट्टी पर ना छोड़ें. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ वाटर गेट पोल्यूटेड व्हाट हैपन? क्या होगा अगर पानी जो है वो बहुत गंदा और पोल्यूटेड हो जाएगा? It actually destroys the marine life. So keep marine life safe, because global warming, factories waste chemical and contaminated water through dumping garbage like plastic or cans. These badly affect the marine life. ठीक है. आपको पता है आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई है. एवरी ईयर जो है वो गर्मी बढ़ती जा रही है. गर्मी बढ़ने की वजह से ये हो रहा है कि हमारे पास नेचुरली पानी की कमी हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो वेपराइज हो जाता है, एवोपरेशन हो जाता है. पहले भी आपको बताया था कि एवोपरेशन क्या होता है, कि वो स्टीम बन के ऊपर चला जाता है,
ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वैसे ही पानी के इश्यूज़ है, प्लस फैक्ट्रीज़ जो है वो अपना केमिकल्स डंप कर रही होती है तो वो गंदा हो जाता है, ठीक है। और फिर ऊपर से हम जो है वो उससे बड़ा कमाल ये करते हैं कि कैन्स और प्लास्टिक जो है वो सारा गार्बेज जो है वो वहाँ पे डंप करते हैं इंस्टेड ऑफ पुट इट इन द बिन्स। तो फिर होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत बैडली इफ़ेक्ट कर रही है और हमारी मरीन लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने की तरफ जा रही है, डिस्ट्रॉय होने की तरफ जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम उसको सेव करें, ठीक है, ताकि ये अर्थ ब्यूटीफुल रहे, ये अर्थ सेफ एंड सिक्योर रहे और हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो आप लोग छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होंगे ना तो उनको और ज़्यादा चीज़ें जो है वो खूबसूरत मिले। ओके ओके स्टूडेंट्स, हियर the topic has been completed. Let's recall all the points to memorize the topic. Number 1, groundwater. Some of the water that fall on the earth seeps into the ground. This water is available to us in the form of groundwater, and some water falls back into ocean, rivers and lakes. Evaporation. The sun heats up the water from oceans, lakes and rivers and changes into water vapor by the process of evaporation. Condensation. These water vapor rises up into air and make a rainy clouds. It start cooling down and form tiny water droplets. This process is called condensation. Next is precipitation. When the clouds gets heavy, they fall to the earth in the form of rain or snow. This process is called precipitation. We call rainfall. The formula of the water cycle: groundwater, evaporation, condensation and precipitation. The next is how to save water. Here are some simple things you can do it at home to save water. Stop running the water while brushing your teeth or washing your hands. Next, take shorter shower. Fix the dripping taps to unflow the water. And the last one is reuse the water that is used for washing fruits and vegetables to water the plants in your home. The next review point is water get polluted through chemical water flow back into rivers and lakes, garbage dump into water. Do not destroy marine life. Okay class, this is your task number 1. Put the correct sequence numbers, label the process of water cycle and write the formula of water cycle. This is very simple and very easy. Just to write the process of the water cycle like groundwater, evaporation, condensation and the precipitation, and write the formula of the water cycle. Okay, so it's very easy assignment, very easy task and I hope you will do at home. Class, I hope you understand the unit very well. Please read the unit to more clear your concept. Thank you for watching this video. Bye for now and wait for the next exciting video. Bye class. Stay safe. Stay at home.